Goa is in a festive mood as it readies for the opening ceremony of the 37th National Games. Yes, all action there. To speak more about the Games and to speak about what he hopes Goa to be as far as sports is concerned, I'm now joined by the Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. Thank you so much for joining us here on East Mojo, sir. Thank you. So welcome from to all the people of the from Northeast to state of the Goa for the 37th National Games. We are very much ready to host all the athletes from all over the India. So, if we are to look at Northeast and Goa together, and what brings these two regions together, I think there are three distinct things. One, of course, is music. Both the regions love music. Second is tourism. And the third most important factor that brings these two regions together is football. Somehow is able to ignite the passions of people both here in the Northeast and there in Goa. Now, as far as the future is concerned, Manipur is the sporting powerhouse of India as far as the Northeast is concerned. How do you see Northeast and Goa perhaps collaborating together? जी हाँ, जैसे आपने कहा आप एक्सट्रीम ईस्ट को हैं, हम एक्सट्रीम वेस्ट को हैं। ये भी वैसे एक बात सही है, लेकिन आपके जैसे कि टूरिज़्म हो, म्यूज़िक हो और स्पोर्ट्स हो, इस खास करके फुटबॉल, जिसके लिए गोवा भी जाना जाता है और नॉर्थ ईस्ट के भी जाना जाता है। तो इन फ्यूचर द गोवा और मणिपुर कैन कोलैबोरेट फॉर स्पेशली फॉर द कल्चर एंड टूरिज़्म। इस दोनों चीज़ के लिए दोनों स्टेट के बीच में इस तरह का एक एग्रीमेंट साइन होना बहुत ही ज़रूरी है, सो दैट द टूरिस्ट those who are coming international tourists, they can fly from the Goa to the Manipur, or those that tourists coming in the Manipur, they can fly to the state of Goa to see the beaches, temple, churches in the state of Goa. Wonderful. The entire Northeast joins together, sir, in wishing Goa, the people of Goa, and you all the best for the national games. I was speaking to Baichung Bhutia some time ago, and even he sent his best wishes for the national games. All in all, people are excited here for the national games. जी हाँ, आपके जैसे कि हमने 37 नेशनल गेम होस्ट करने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है, और हर एक जो एथलेट्स कहीं से भी गोवा में जो आता है उनकी अच्छी तरह से केयर हमारे पूरे वॉलेंटियर्स और सभी गवर्नमेंट गोवा के सभी ऑफिसर्स कर रहे हैं। उनको रिसीव यानी या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट या बस स्टैंड से करके उनके होटल तक और बाकी सभी गेम्स और वेन्यू पे उनका अच्छी तरह से बहुत बढ़िया तरह से स्वागत कर रहे हैं। उनको भी ये स्वागत और गोवा वाली गेम्स यादगार गेम्स रहेंगे। हम भी उम्मीद करते हैं सर कि ये 37 नेशनल गेम्स बहुत सक्सेसफुली हो. Most people forget, sir, that even a small state like Goa has produced about 3 Arjuna awardees, which is a big achievement. So when you look at the games, you've decided to go ahead. You've done it now. The games are going to be inaugurated. What kind of push will it give Goan sports? जी हाँ, पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने गोवा जैसे छोटी स्टेट्स को भी नॉर्थ ईस्ट में होते हुए भी इतनी बारकाई से देखा कि 3 अर्जुना अवार्ड ही गोवा जैसे छोटे राज्य ने दिया है। वो भी 1961 में लिबरेट होने के बाद हमारा हम इंडिपेंडेंस हमें 1947 में नहीं मिला है, 1961 में लिबरेशन मिला है। उसके बाद में भी गोवा के सभी एथलीट्स बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से जोश के साथ अपना पूरा तन मन धन से ही जो एथलेट्स स्पोर्ट्स में लगे रहते हैं। इन फ्यूचर इस नेशनल गेम्स होस्ट करने के बाद जितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने रेडी किया है और जो एसोसिएशंस और एसोसिएशन को सपोर्ट जो किया है, इससे आगे हम ज़्यादा अर्जुना अवार्डी या ज़्यादा मेडल्स नॉट ओनली द नेशनल गेम्स बट फॉर द नेशनल एंड इंटरनेशनली जितने सारे स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गोवा के लिए भी और मेडल मिले। The other important thing I wanted to discuss with you is women participation. Now, this time around, when you look at the numbers, we see 49% of women coming in as participants.
How do you see this? 37 नेशनल गेम्स में जो 49% ऑफ द वुमेन पार्टिसिपेंट है, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने वुमेन यानी मैन के बराबर यानी गेम्स नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट हो रही हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद तो इसका परसेंटेज और भी बढ़ेगा, और इट इज़ द सेम टू सेम परसेंटेज, यानी मैन के कंपैरिजन में सेम परसेंटेज वुमेन इस तरह से पार्टिसिपेट होगी। ये मैसेज जाती है कि अभी दे आर कॉम्पिटिंग विद द मैन इन एवरी सेक्टर, कॉम्पीट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, कोई पीछे नहीं रह रहा है। अभी सभी लोग यानी वुमेन एम्पावरमेंट, माननीय मोदी जी का जो संकल्पना है कि सबका साथ सबका विकास, तो महिला अभी आगे बढ़ रही हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है और बड़ी बात है। And also, sir, this time around we are introducing some local sports like Malakham, and I'm sure there will be a lot of interest among people to view it. जी, आपकी बात सही है। गोवा में इसको हमने ऐड किया है कि मल्लखंब है, लगोरी है, इस तरह के गोवा के जो एडिशनल गेम हैं यानी वो भी हमने इसमें ऐड किया है। लगोरी और मल्लखंब जैसे गेम होने के कारण गोवा नेशनल 37 नेशनल गेम्स का अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ गया है, और मुझे लगता है कि ये गेम देखने के लिए जो बाहर के एथलीट्स हैं उनके लिए भी यानी पहली बार लगोरी और मल्लखंब जैसी गेम्स वो 37 नेशनल गेम्स में देखेंगे। You know, sir, Northeast does have a sporting culture. A lot of children will be listening in to your interview. As a chief minister, what will your message be to young children, especially who are watching this program? मैं तो कहूँगा कि बच्चों को, जितने सारे बच्चे खेलते हैं उन सबको मेडल मिलता है ऐसा नहीं है, लेकिन खेलना बहुत ज़रूरी है। अपने को खुद फिट रखने के लिए खेलना एक तो ज़रूरी है, और स्पोर्ट्स में करियर करने के लिए खेल के साथ साथ हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी एस्टाब्लिश करने जा रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में डिग्री डिप्लोमा लेके वो स्पोर्ट्स में करियर कर सकते हैं। तो फिर इस देश में स्पोर्ट्स में करियर करना भी बहुत उचित है, और आगे इस आज़ादी के अमृत काल में हम 25 साल की बात सोचें तो स्पोर्ट्स में करियर युवकों का हो सकता है। इस 37 नेशनल गेम्स में ये डिसाइड होगा। Dr. Saab, I just have a few questions towards the end. One is an important one. What is your favorite sport? And when you were young, what sport did you play? मेरा फेवरेट गेम तो फुटबॉल है। मैं फुटबॉल नहीं तो क्रिकेट खेलता था। अभी इसके बाद मैं कभी कभी बैडमिंटन खेलता था, लेकिन अभी कुछ भी गेम नहीं खेलता हूँ, सॉरी। और सर, फुटबॉल में आप कौन सा पोजीशन खेलते थे? फुटबॉल में तो वैसे मैं फ्रंट भी नहीं खेलता था, बीच में ही खेलता था। तो सर, ये भी रिफ्लेक्ट करता है आपके पॉलिटिक्स में, क्योंकि आप बीच में खेलते थे और एकदम अब आप आगे आ गए हैं एक स्ट्राइकर की तरह उभर के। मैंने बीच में रह के ऑब्जर्व किया, इसलिए मुझे फ्रंट में खेलने का अभी मौका मिल रहा है। Thank you, sir. Thank you. Wishing you all success and greetings to the people of Goa from the Northeast. Thank you so much for speaking to us here on East Mojo. Don't forget to like, share, and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.